Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. So now we will start lesson number 5, factors and multiply. So student, before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So all of you know very well what you had learned our last classes. First you had learn about the multiplies. Okay, so now look at here one example. 15 equal to 3 into 5, 15 equal to 5 into 3, and 15 equal to 15 into 1, and 15 equal to 1 into 50. So 1, 3, 5 and 15 can be multiplied by the another number to get a 15. So we say that 15 is the multiple of 1, 3, 5 and 15. Okay, so 15 is called the multiple of the 1, 3, 5 and 15. Why calling? Because when we are multiply the two numbers, means when we are multiply 1 into 15 we will get 15. When we are multiply 3 into 5 we will get 15. When we are multiply 5 into 3 we will get 15. When we are multiply 15 into 1 we will get 15. So when we are that number we will get the 15 answer. So means 1, 3, 5 and 15 are the multiple of the 15. ठीक है, 1 को हम 5 के साथ 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 15 मिलता है. 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मिलता है. 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मिलता है. 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 15 मिलता है. मतलब ये जो नंबर है एक दूसरे के साथ, मतलब सभी के साथ नहीं, कुछ नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 15 मिलता है. इसलिए हम उसको बोलेंगे कि 15 इज़ मल्टीपल ऑफ 1, 3, 5 and 15. So this is multiple. Then after we had learned the property of multiplies. So every number is multiple of itself. Every number is multiple of itself. Every number is a multiple of 1. Every number is multiple of 1. Then third number, a multiple of number is always greater than or equal to number itself. A multiple is number is always greater and equal to itself number. A number has an uncountable number of multiples. There is no largest multiple of number. There is no largest multiple number. Then after we had learned the odd and even number. So which is the odd number and which is the even number? A number which is multiple of 2. A number which is multiple of 2 is called even number. For example, 2, 4, 6, 8. A number which is not multiple of 2 is called odd number. Example 1, 3, 5 and 7 etc. So इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में जो नंबर 2 के साथ टोटली डिवाइड होता है, मतलब जब हम जो भी नंबर 2 के साथ डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम उसको बोलते हैं इवन नंबर. और 2 के साथ डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर. ओके, सो दिस इज इवन एंड ऑड नंबर. देन we had learned the factors. Okay, so what is the factor? A factor of number divide the number without the leaving a remainder. हम फैक्टर क्या बोलते हैं? कोई भी नंबर जिसको हम डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है, तो उसको हम उस नंबर के फैक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 के मल्टीपल्स क्या है? 1, 3, 5 एंड 15 है. इफ़ यू डिवाइडेड बाय 15 बाय 1, 3, 5 और 15 देयर इज़ अ नो रिमाइंडर. सो 1, 3, 5 एंड 15 आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द 15. जब हम 15 को ये जो नंबर है 1, 3, 5, 15 इसको साथ डिवाइड करते हैं तो इस समय हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1, 3, 5 एंड 15 आर द फैक्टर ऑफ द 15. हम क्या बोलेंगे? ये 15 के फैक्टर्स है. When we multiply 2
or more number we get product. When we are multiplied 2 or more number we will get product. The product of multiple of each number is multiplied. Each number is factor of the product. जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उस नंबर के फैक्टर होते हैं, मल्टीप्लाई के फैक्टर्स होते हैं. Then after we had learned the finding factor, then exercise 5.2. Now our today's topic, factor tree. The following diagram are called factor tree. This is the diagram of factor tree. This is look like a tree. They show the factor of number. The number 1 is not showing in the factor tree since it is the factor is every number. जब हम क्या करते हैं फैक्टर ट्री के फैक्टर निकालते हैं तब हम 1 नहीं लिखते हैं वहाँ पे. जैसे देखो 6 के कौन से 2 फैक्टर्स है, 3 इंटू 2. देन 12 के कौन से 2 फैक्टर्स है, 6 इंटू 2. नाउ ये 2 के फैक्टर निकल सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज दिस इज़ द प्राइम नंबर. 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमने 2 को एज इट इज़ लिख दिया. अभी 6 के फैक्टर निकलेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है. देन 24 के 2 फैक्टर्स है, 6 एंड 4. नाउ 6 को हम 2 इंटू 3 इंटू 2 नहीं तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 मिलता है, और 4 को 2 इंटू 2 करते तो 4 निकलता है. तो 24 के फैक्टर क्या हो गए, 3, 2, 2. ओके, ये 24 के फैक्टर है. 12 के फैक्टर क्या है, 3, 2, 2. Now look at here exercise 5.3. Question number 1. Do not think 12 can also different factor tree. Show that 12 के यहाँ पे एक फैक्टर दिया है. कौन सा फैक्टर दिया है, 6 इंटू 2. 6 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है. और 12 के कोई फैक्टर निकल सकते हैं क्या, इन्होंने यहाँ पे हिंट दिए है. क्या हिंट दिया है, 4 इंटू 3. अगर हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फैक्टर मिलता है. यस, अभी हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे. सो नाउ लुक एट हियर. Yes, 12 can also have a different factor tree. So 12 के फैक्टर निकाला है 3 इंटू 4. 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या आता है, 12 निकलता है. नाउ ये 3 है, 3 कौन सा है, इवन नंबर है क्या, सॉरी नॉट इवन नंबर. 3 क्या है, प्राइम नंबर है. क्या है, प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर मीन्स द नंबर विच एवर द ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ नंबर. 3 को किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं क्या, 3 के फैक्टर क्या निकलेंगे, एक 1 और 3 निकलेंगे. तो हम जब हम 3 फैक्टर लिखते तब 1 नहीं लिखते, तो हमने 3 को नीचे लिख दिया. अभी 4 के फैक्टर निकलेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा. तो क्या हो गया, 2 इंटू 2. नाउ 12 के फैक्टर क्या निकल गए 3, 2, 2. सो नाउ लुक एट हियर. 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, हमारा 12 आ गया. तो ये क्या है, 3 फैक्टर है 12 के. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. कैन द नंबर 24 हैव अ मोर फैक्टर ट्री, हाउ मेनी मोर. क्या पूछ रहे, 12 के एक से ज़्यादा फैक्टर है क्या, है तो वो कौन से है. सो सॉरी 24 के मोर फैक्टर है तो वो कौन से है, ठीक है. सो 24 हैव अ मोर फैक्टर. सो हाउ मेनी, नाउ लुक एट हियर. यस, 24 हैव अ मोर फैक्टर ट्रीज. 24 हैव अ 3 फैक्टर ट्रीज. 24 के कितने फैक्टर्स है, 3 है. सो नाउ लुक एट हियर. 24 2 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 24 आता है. ओके, सो नाउ 2 ये हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है. 2 के फैक्टर निकलते क्या, 2 को किसी के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा. अगर हम 2 के फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है, 1 और 2. तो 1 हम नहीं लिखेंगे तो हमने 2 को एज इट इज़ लिख दिया है. अभी ये 12 है, 12 के फैक्टर निकालना है. 2 इंटू 6 करते हैं तो 12 आता है. तो हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 लिख दिया. नाउ ये 2 नीचे आ गया. अभी ये भी 2, इसके भी फैक्टर नहीं निकलेंगे तो हमने ये भी 2 लिख दिया नीचे. नाउ 6 के फैक्टर निकालेंगे.
6 के फैक्टर 2 इंटू 3, अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6 आता है। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। नाउ 24 के फैक्टर के आगे 2 2 2 3। नाउ लुक एट हियर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। सो हमारा फर्स्ट फैक्टर निकल गया है 24 का। नाउ नेक्स्ट फैक्टर, अगर हम 24 को 3 और 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 कितना होता है 24 होता है। नाउ 3 को हम एज इट इज़ नीचे लेंगे क्योंकि 3 के फैक्टर निकलते क्या नहीं, 3 कौन सा नंबर है प्राइम नंबर है। नाउ 8 के फैक्टर निकलेंगे, 8 को 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 8 आता है। 2 इंटू 4 8 होता है। नाउ ये 2 भी प्राइम नंबर है तो 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अभी 4 के फैक्टर निकलेंगे, 4 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 4 आता है। तो अभी ये क्या हो गए 2 इंटू 2 4। सो ये हमारे हो गए फैक्टर। अभी ये जो नीचे नंबर है ये सभी प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे। नाउ वी विल चेक, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 एंड 12 इंटू 2 24, आ गया ये 24। नाउ हम थर्ड नंबर का फैक्टर निकालेंगे 24। अगर हम 24 को 4 इंटू 6 करते हैं, 4 इंटू 6 कितना होता है 24 होता है। नाउ 4 2 इंटू 2 4 होता है एंड 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है। तो ये हमारे क्या हो गए अभी 2 2 2, ये हमारे सभी क्या हो गए प्राइम नंबर हो गए। अभी इसके फैक्टर निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे 24 के फैक्टर हो गए। नाउ हम चेक करेंगे इसका आंसर 24 आता है कि नहीं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 3 24। सो ये हमारे 24 के फैक्टर आ गए। तो हमारे 24 के कितने फैक्टर आ गए हैं 3 फैक्टर्स आ गए। ओके, सो ये हो गया हमारा 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक 2 फैक्टर्स 3 ईच। ठीक है, ये जो नंबर दी है उसके सभी के 2 फैक्टर्स निकालने हैं, 3 फैक्टर्स निकालना है, 16 20 30 32 एंड 36। तो हम क्या करेंगे पहले स्टार्टिंग 16 से करते हैं। ठीक है, अभी 16, नाउ लुक एट हियर 16 को 2 और 8 करेंगे, 2 इंटू 8 कितना होता है 16 होता है। नाउ दिस इज द 2 क्या है 2 प्राइम नंबर है, 2 के फैक्टर निकलेंगे क्या नहीं, तो 2 को हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। देन 8 के 2 फैक्टर निकलेंगे 2 और 4, 8 को 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 8 आता है। नाउ हमने 2 को एज इट इज़ लिख दिया, ये भी 2 को एज इट इज़ लिख लिया। अभी 4 है, 4 को 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है हमारा 4 होता है। 2 इंटू 2 4 होता है। सो नाउ लुक एट हियर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। सो हमारा 16 ये पहला फैक्टर हो गया। अभी 16 के हम दूसरा फैक्टर निकालेंगे, 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है। 4 के 2 फैक्टर निकलेंगे 2 एंड 2 एंड यहाँ पे भी 2 एंड 2 हो गए। तो हमारे 16 के नेक्स्ट वाले फैक्टर क्या हो गए 2 2 2 2। ना हम चेक करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो हमारा आ गया ये 16। तो ये 16 के फैक्टर है। नाउ 20, 2 के साथ 10, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 20 मिलता है। अभी हम 2 को नीचे लिख देंगे क्योंकि ये 2 प्राइम नंबर है। अभी 10 के फैक्टर निकालना है, 2 इंटू 5 करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, सो 20 के फैक्टर के आगे 2 2 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। मे बी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमें कैसे समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमें टेबल लर्न होना ज़रूर है, नहीं तो हम क्या करेंगे
जैसे 20 है, 20 को हम 2 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। अगर 20 को 2 के साथ डिवाइड कर दे तो हमें क्या आता है, 10 आता है। मतलब हम 2 इंटू ये जो हमारा डिवाइडर है और हमारा क्वोशंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो अगर हम ये 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, ठीक है। अगर 2 के साथ फॉर एग्जांपल है 33 है, अगर हम 2 को 33 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये टोटली डिवाइड होता है क्या, देखेंगे। 2 1 सा 2, 1 ब्रिंग डाउन 2, 2 6 सा 12, 13 आता है क्या, नहीं। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, हमारा 1 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब 2 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 33 मिलेगा का, नहीं मिलेगा। फिर हम 3 के साथ चेक करके देखेंगे। अभी 33, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3। तो देखो अभी हम 3 1 का 3 के साथ हमने 33 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया है, 11। मतलब हम 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। मतलब हमारा आंसर ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल के देखते हैं सभी नंबर के। कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर 3 के साथ भी नहीं निकलेंगे तो 4 के साथ, ऐसे हम करके देखेंगे। अगर 2 के साथ निकलता है तो फिर 2 के साथ निकालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 फैक्टर निकालना है। 2 इंटू 10 करेंगे तो क्या होता है, 20 आता है। अभी हमारा हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के टेबल में 4th वाले प्लेस पे क्या आता है, 20 आता है। सो हमने 5 को नीचे लिख दिया क्योंकि 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 5 के भी कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ 4 को 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है क्या, यस, 2 इंटू 2 4 होता है। अभी आप बोलेंगे कि कैसे समझ में आएगा कि 5 के फैक्टर आते हैं कि नहीं। सो ये 5 जो है वो किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आते हैं। 5 जो है ये सिर्फ किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, वो भी 1th वाले प्लेस में। कौन से प्लेस में आता है, सिर्फ 1 वाले प्लेस पे आता है। मतलब ये हमारा, अगर हम 5 इंटू 1 करेंगे तो भी 5 मिलेगा। 5 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है, किसी के साथ डिवाइड नहीं होता है। तो 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। अभी देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, ये आगे है 20, ये 20 के फैक्टर से। उसके बाद 30, 2 इंटू 50 करेंगे तो हमें क्या आता है, 30 आता है। अभी 2 को नीचे लिख देंगे क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। देन 15, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 15 होता है। 3 इंटू 5 15 होता है। देन 2 इंटू 3 इंटू 5, अभी ये किसके फैक्टर हो गए, 30 के। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 आ गया ये। अभी नेक्स्ट बी, मतलब दूसरा फैक्टर निकालेंगे 30 के। अगर 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 10 सा 30 होता है। अभी 3 क्या है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है तो हमने उसको एज इट इज़ नीचे लिख दिया। नाउ 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या होता है, हमें 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, अभी फैक्टर हो गए। अभी 30 के फैक्टर क्या हो गए, 3 2 एंड 5, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30। सो ये हमारे 30 के फैक्टर हो गए। नाउ नेक्स्ट 30, 32 एंड 36। नाउ 32 के फैक्टर निकालेंगे। ओके, सो नाउ लुक एट हियर। 30 तक मैंने आपको, जब हमने ये लेसन स्टार्टिंग में शुरू किया था तो तब हमने निकाला था। अभी हम 32 के फैक्टर निकालेंगे। 4th नंबर का क्या है, 32। सो 32 के हम फैक्टर निकालेंगे। हमें 32 के फैक्टर निकालना है तो हम 2 इंटू 16 करते तो 32 होता है। 16 इंटू 2, नाउ लुक एट हियर, 6 2 जा 12 एंड 3, 32 आ गया है। अभी 32 के फैक्टर क्या निकल गए, 2 एंड 16, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 2 क्या है हमारा, ये प्राइम नंबर है। नाउ अगर हम 2 इंटू 8 करते हैं,
क्या करेंगे, 2 इंटू 8 करेंगे। तो 2 इंटू 8 क्या होता है, 16 होता है। अभी हम क्या करेंगे, इस 2 को, ये 2 को और ये 2 को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अभी 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या होता है, 8 होता है। 2 4 जा 8 होता है। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी इसके फैक्टर निकालेंगे। अगर हम 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होता है, 4 होता है। ना हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी ये सभी क्या हो गए, हमारे प्राइम नंबर हो गए, तो इसके फैक्टर निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे। नाउ हम चेक करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, ये आ गया हमारा 32। ये वन फैक्टर हो गया। अभी सेकंड फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अगर हम 3 को हम डिवाइड करेंगे अगर किसके साथ, 32 के साथ, तो हमारा होगा क्या, नहीं होता है। 4 के साथ होगा क्या, अगर हम 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 8 32 होता है, ठीक है। 3 के साथ नहीं होता था इसलिए हमने 4 लिया है। अभी 4 के क्या निकलेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होता है। नाउ हम 8 के निकालेंगे। अगर हम 2 इंटू 4 करते तो क्या होता है, 8 होता है। अभी ये 2 के फैक्टर निकलेंगे क्या, नहीं। ये 2 के निकलेंगे क्या, नहीं। ये 2 के निकलेंगे क्या, नहीं। अभी हम 4 के फैक्टर निकालेंगे, 2 एंड 2। नाउ लुक एट हियर, अभी इसके फैक्टर निकल सकते हैं क्या, नहीं। सो लुक एट हियर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32। तो हमारा ये दूसरा फैक्टर निकल गया 32 का। सो कौन सा है, 2 2 2 एंड 2, ये हमारे 32 का नेक्स्ट फैक्टर निकल गया, ठीक है। अभी कौन सा नंबर है, 36। 36 का हम नेक्स्ट फैक्टर निकालेंगे। 2 के साथ 36 को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 18 2 16, ठीक है। हम 2 के साथ यहाँ पे करके देखेंगे, 2 1 2 1 16 16, 2 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है, 8, तो ये आ गया है 18। अगर 2 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमें 16 आता है। नाउ ये 2 हमारा प्राइम नंबर है। अभी हम 8 के फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू 9 करते हैं तो क्या आता है, 18 आता है। अभी 2 हमारा प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है। अभी 2 9 है, 9 2 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं। अगर हम 3 इंटू 3 करते हो तो क्या आता है, 9। अभी देखो हमारा जो 3 है वो क्या हो गया है, प्राइम नंबर आ गया, तो इसके फैक्टर निकलेंगे क्या, नहीं। अभी हम चेक करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12 एंड 12 3 12 3 36, तो हमारा ये 36 आ गया। अभी हम 3 के साथ 36 को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 3 1 3 0 6, 3 2 6, मतलब हम 36 के फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 12। अगर हम 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है, यस आता है। अभी 3 हमारा ये प्राइम नंबर हो गया। अभी हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। अगर हम 3 इंटू 4 करते हैं, 3 इंटू 4 करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। नाउ ये 3 हमारा प्राइम नंबर है, ये 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। अगर हम 2 इंटू 2 करते हैं तो क्या आता है, हमारा 4 होता है। तो हमारे 36 के फैक्टर क्या निकल गए हमारे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 एंड 18 इंटू 2 36। तो ये हमारे 36 के 2 फैक्टर हो गए, ओके। सो 36 के 4 के भी फैक्टर निकलते हैं। 4 के टेबल में 9th वाले प्लेस पे क्या आता है, 36 आता है, ओके। यहाँ पे हम करके देखेंगे। अगर हम 4 इंटू 9 करते हैं, क्या करते हैं, 4 इंटू 9, 4 के टेबल में 9th वाले प्लेस पे क्या आता है, 36 आता है। 4 9 36।
अभी 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 आ जाएंगे और 9 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 इंटू 3 आ जाएंगे. सो 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 3 4 इंटू 2 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 3 36. तो ये भी हमारे क्या आ गए 36 के फैक्टर आ गए. ठीक है. और 36 के भी टेबल में आते हैं. 6 इंटू 6 करते हैं तो 36 आता है. ठीक है. तो हमारे 36 के फैक्टर कितने निकलते हैं 4 फैक्टर निकलते हैं. मतलब 4 3 फैक्टर्स निकलते हैं हमारे 36 के. ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द दिस कैन हैव अ मोर देन 2 फैक्टर 3. इसमें से कौन सा नंबर है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आता है. एक तो 36 है जो आपको मैंने बताया है और दूसरा है 30 को हम 3 इंटू 15 करते हैं तो क्या आता है देखो यहाँ पे दिया है. 3 इंटू 6 करते हैं तो 30 आता है. 30 के फैक्टर 6 इंटू 5 करते हैं तो 30 आता है. 10 इंटू 3 करते हैं तो 30 आता है. 15 इंटू 2 करते हैं तो हमारा क्या आता है 30 आता है. तो ये हमारे 30 के फैक्टर है और यहाँ पे हमने 36 के फैक्टर निकाले थे. तो 36 और 30 के 2 से भी ज़्यादा क्या आते हैं फैक्टर्स आते हैं. ओके. सो ये हमारा फैक्टर. Now look at here prime and composite number. I hope all of you nicely understood exercise 5.3. So now look at here prime and composite number. Look at this factor tree of the 30. यहाँ पे 30 के फैक्टर दिए है. ठीक है. 30 के कौन से फैक्टर से 6 इंटू 5 करते हैं तो 30 आते हैं. 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 एंड 5 इज द प्राइम नंबर. देन 10 के फैक्टर कौन से 30 के फैक्टर क्या है 10 इंटू 3. 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है. 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आता है एंड 3 ये प्राइम नंबर है. सो हमारे 30 के फैक्टर क्या है 5 2 एंड 3. यहाँ पे थे 3 2 एंड 5. 30 के फैक्टर से 15 इंटू 2 करते हैं तो 30 आता है. अगर 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है और 2 हमारा प्राइम नंबर है. नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे देखो नीचे सबसे नीचे तीनों के नीचे यहाँ पे 3 है 2 है 5. यहाँ पे 5 है 2 है 3 और यहाँ पे 3 है 5 है 2 है. तीनों में भलाई क्या है नंबर चेंज हुआ है. मतलब प्लेस यहाँ पे चेंज है लेकिन तीनों के नीचे सेम नंबर है. यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है. यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है. यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर निकलता है. किसी नंबर के 2 से भी ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं. नाउ note that the bottom row of the all factor tree show the same factor 2 3 and 5. 2 3 and 5 cannot be split into the further factor. Each of them have a 2 factor. One has a number itself. यहाँ पे क्या है जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे नीचे बॉटम वाली रो है सभी के फैक्टर क्या है सेम ही है. भला है उसकी प्लेस वैल्यू चेंज है. तो सभी नंबर की क्या होते हैं हम किसी भी टाइप से उसके फैक्टर निकलते हैं जो हमारे बॉटम वाले फैक्टर से वो क्या रहते हैं सेम ही होते हैं. Now look at here. Number which have only 2 factor. A number which have only 2 factor, one and the number itself is called prime number. Prime number किसको बोलते हैं ऐसा नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और itself नंबर है. क्या है 1 और itself नंबर है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर. लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम 11 to 20. 11 से लेकर 20 तक हमें प्राइम नंबर निकालना है. 11 है 13 है 17 है और 19 है. 11 के फैक्टर होते हैं क्या नहीं. 11 सिर्फ 11 के टेबल में फर्स्ट वाले प्लेस में आता है और किसी टेबल में दिखता है क्या वो किसी के साथ डिवाइड होता है क्या नहीं. देन 13 भी क्या होता है सिर्फ 13 के टेबल में फर्स्ट वाले प्लेस पे आता है. मतलब 13 इंटू 1 क्या होगा 13 होता है और किसी टेबल में दिखता है क्या नहीं. देन 17 भी 17 के टेबल में फर्स्ट वाले प्लेस में आता है वो कहीं पे दिखता है क्या नहीं. देन 19 भी क्या है सिर्फ 19 के फर्स्ट वाले प्लेस पे आता है और किसी के साथ डिवाइड नहीं होता है. मतलब ये क्या हो गया हमारे प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर मतलब 2 फैक्टर्स दैट 1 एंड नंबर इटसेल्फ नंबर. Then composite number which have a more factors are called composite factor. जिसके
टू से भी ज़्यादा फैक्टर्स है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. लिस्ट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन द 11 to 20. ठीक है. फर्स्ट look at here, the number 4, 6, 8, 9, 10 have a more than 2 factor. किसके more than factor है? 4, 6, 8, 9 एंड 10. इसके 2 से भी ज़्यादा फैक्टर्स है. तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है. सो 11 to 20 के लिस्ट में क्या आता है? 12, 14, 15, 16, 18, 20. ये क्या है? 11 to 20 के टेबल में फैक्टर्स है. नोट दैट 1 इज़ नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, इट इज़ द यूनिक नंबर. 1 जो नंबर है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नंबर नहीं है, वो एक क्या है? यूनिक नंबर है. ओके, सो दिस इज द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. Property of factors we will be see in our next period. I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.